یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ مبشر رفائی سے خبریں سنیے۔ پہلے بلٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ نینو ٹیکنالوجی اور نینو سائنس کا مستقبل کی ضرورتوں میں اہم رول۔ ایل جی منوج سنہا کا کشمیر یونیورسٹی میں 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے مطابق حکومت جی ایس ٹی کے فوائد ملک کے ہر شہری تک پہنچانے کے لیے پرعزم۔ آپریشن سندور نے بھارت کی طاقت کو اقوام عالم پر کیا واضح، ایئر چیف مارشل کا بیان۔ اور سری نگر جموں قومی شاہراہ آج بھی رہی بند۔ شمالی ریلوے کا کل سے 5 روز تک کٹرا سنگلدان مقامی ریل سروس چلانے کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ دور حاضر میں نینو سائنس اور نینو ٹیکنالوجی نے مختلف شعبوں پر ارتقائی نوعیت کے اثرات مرتب کیے ہیں اور جدید تحقیق مستقبل میں صنعتی، طبی اور ماحولیاتی چیلنجوں کا حل فراہم کرے گی۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی فار بیٹر لیونگ کے موضوع پر آئی آئی ٹی حیدرآباد کے اشتراک سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے سائنسدانوں اور ماہرین سے تاکید کی کہ وہ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے حساس اور درست سینسرز تیار کر کے سیلاب سے متعلق ایک جدید پیشگی وارننگ سسٹم تیار کریں۔ The world has seen how key nanotechnology applications have powered the semiconductor technology, and smaller, faster and more energy efficient devices have transformed electronics, communication system and artificial intelligence. I can say these advancements have reshaped our lives, our work environment, and most importantly, our connection to the world. In the years to come, this will become more prominent as we script the new advancements in technologies. Friends, we must focus on developing and using nanotechnology for the benefit of humanity, and I would like to reiterate that we simply can't ignore the daunting challenges of climate change that confront us. I would like this international conference to provide certain suggestions on this as well. ایل جی نے اس 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے لیے ایک ایبسٹریکٹ بک کی رسمی اجرائی بھی انجام دی۔ اس موقع پر کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، برک انسٹم بنگلورو کے ڈین ایکیڈمکس پروفیسر پروین کے ویمولا، آئی آئی ٹی کانپور سے وابستہ معروف سائنسدان پروفیسر اشوک کمار اور کشمیر یونیورسٹی کے نینو ٹیکنالوجی شعبے کی سربراہ اور مذکورہ کانفرنس کی آرگنائزر پروفیسر رابعہ حمید کے علاوہ دیگر کئی سائنسدان اور ماہرین بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ اور انتظامیہ کے کئی دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ فضائی فوج کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور نے فیصلہ کن انداز میں درستگی کے ساتھ حملہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت کو ثابت کر دیا ہے۔ چنئی میں آفیسرز ٹریننگ اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی فوج میں شامل کیے گئے نئے آفیسرز پر زور دیا کہ وہ ملک کی خدمت کے لیے مشترکہ جذبے کو برقرار رکھیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ وہ بذات خود اس بات پر نظر رکھی ہوئی ہیں کہ جی ایس ٹی کے فوائد شہریوں تک پہنچ جائیں۔ ایک میڈیا چینل کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے لوگوں نے جی ایس ٹی اصلاحات کو ایک قابل قدر قدم قرار دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے عوامی مفاد میں کئی چیزوں اور خدمات پر عائد جی ایس ٹی کی شرحوں میں معقولیت لائی ہے۔ جی ایس ٹی اصلاحات کے کچھ اہم نکات یوں ہیں: 33 حیات بخش ادویات پر عائد 12% جی ایس ٹی کو مکمل طور ختم کیا گیا ہے، جبکہ ایسی مزید 3 ادویات پر عائد 5% جی ایس ٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ باقی ادویات کی جی ایس ٹی شرح کو 12% سے گھٹا کر 5% کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ ہینڈی کرافٹس، ماربل، گرینائٹ، بلاک اور چمڑے کی مصنوعات کا جی ایس ٹی 12% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سیمنٹ پر جی ایس ٹی 28% سے گھٹا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ مرکزی سرکار کی جانب سے جی ایس ٹی اصلاحات کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 9:30 بجے نشر ہوگا۔ پروگرام کے مہمان ہیں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری جنرل فیض بخشی۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔
मुल्क में तमाम लोगों तक बैंकिंग सहूलियात पहुंचाने और माली शमूलियात को यकीनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की कामयाब अमलावरी जारी है। अब तक 56 करोड़ से जायद लोग इस योजना से इस्तेफादा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में इस योजना की अमलावरी में जम्मू कश्मीर बैंक लीड बैंक की हैसियत से कलीदी रोल अदा कर रहा है। योजना की खसूसियात के बारे में जम्मू कश्मीर बैंक के फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जमीर अहमद कादरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिसके पास पीएमजेडीओ अकाउंट है उसको एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो पीएमजेडीओ अकाउंट होल्डर है वो डिजिटल सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे लोग हैं उनको डिजिटल सर्विसेज भी बैंकिंग की कुछ न कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड पे मिलनी चाहिए। तो रुपए कार्ड इसके साथ ही मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि उन लोगों को जिनके पास पीएमजेडीओ अकाउंट है उनको छोटा सा क्रेडिट भी मुहैया हो बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो जिसके पास पीएमजेडीओ अकाउंट है उसको ऑटोमेटिकली एलिजिबल कि वो 10,000 का ओवरड्राफ्ट किसी भी वक्त इस अकाउंट से निकाल सकता है जब भी उसको जरूरत हो। तो उसके लिए उसको कोई लोन एग्रीमेंट नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माली पाईदारी के लिए स्टार्ट अप से जुड़ी मईशत के फरोग पर जोर दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैंपस टैंक का आगाज करने के बाद एक एक्सपोस्ट में उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की तरक्की सिर्फ आईटी तक महदूद नहीं है बल्कि दीगर कई शोबों में भी इसके बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। उधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि किश्तवाड़ छात्रों सिंथन टॉप सड़क छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। उन्होंने कहा है कि डोडा किश्तवाड़ छात्रों सिंथन टॉप अनंतनाग रोड भी खुला हुआ है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल अमन और रूहानी सुकून की एक अलामत है, जहां पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस मौजूद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुज़श्ता दिनों दरगाह हजरत बल में पेश आए वाक़ये को अफसोसनाक करार दिया। आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौल और हवा की पाकीज़गी की अहमियत से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना है। इस दिन की अहमियत के बारे में राइट टू क्लीन एयर के मौजू पर डॉक्टरेट और जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नितिन शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है पब्लिक हेल्थ का क्लीन एयर। और खासकर आपने देखा होगा कि कितनी बीमारियां, खासकर सीओपीडी डिजीजेस की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करें तो किस दर्द से वो बढ़ रही हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ की जो सिचुएशन है मुझे लगता है बड़ी अलार्मिंग है। आप रिसेंट डाटा जो है 2024 या 23 का देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो खासकर रिस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के, खासकर कश्मीर में और कुछ ऐसे एरियाज जहां पर अभी भी जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है एज फार एज जो फ्यूल के रिलेटेड जो है लोगों को मालूम नहीं है या लोगों को मिटिगेशन जो मेजर्स हैं वो लोग नहीं लेते हैं, तो वहां पर इसकी बढ़ोतरी कितनी है। और खासकर जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, टाइमली एक्शन नहीं हो पाता, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि सीओपीडी का राइज है और किस तरीके से वो एयर पोल्यूशन से जुड़ा है। जम्मू एंड कश्मीर जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे कुदरती जो आपदाएं जो है हमारे सर पर आए दिन जो है वो किसी न किसी फॉर्म में आती हैं, कैसे उसको रोका जाए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात कर रहे थे जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नितिन शर्मा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। फौज ने कठुआ जिले के बसोली से बन्नी के दरमियान हालिया सैलाब की वजह से तबाह हुई सड़क को आमदरफ्त के लिए दोबारा बहाल कर दिया है। फौजी तर्जमान ने कहा है कि इस सड़क को मुकम्मल तौर नए सिरे से तैयार किया गया है और फौज ने शदीद बारिशों और सख्त मौसमी हालात के दौरान इस पर काम जारी रखा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर और असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने हालिया बारिश और सैलाब के दौरान उधमपुर में बाली नाला और थाड़ के दरमियान तबाह हुई कौमी शाहरा की फौरी बहाली पर जोर दिया है। महकमे जंगलात ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की हिदायत पर जिले के फरीदाबाद इलाके में दरमांदा उन बकरवाल कुंभों के लिए हंगामी बुनियादों पर लकड़ी का पुल तैयार कर लिया है, जो हालिया सैलाबी सूरत हाल की वजह से इलाके के लगभग सभी पुल तबाह होने से दरमांदा होकर रह गए थे। अनंतनाग और कुलगाम अजला के लिए सरनल अनंतनाग में मुनक़द किया गया 7 रोजा कुकोन ऑक्शन मार्केट आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मार्केट का इफ्तिताह 1 सितंबर को सेंट्रल सिल्क बोर्ड के CEO और मेंबर सेक्रेटरी P शिवा कुमार और सेरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने किया था। इस मुहिम के तहत
पुलवामा और शुपियां अजला के लिए ऑक्शन मार्केट निकस पुलवामा में 10 सितंबर से 14 सितंबर तक मुनक्किद होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 43वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। एक पार्टी बयान में कहा गया है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ की। बयान के मुताबिक उनके मजार वाक़ा नसीम बाग हजरत बल श्रीनगर में कल कुरान ख्वानी की मजलिस और गुलबारी होगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में एक स्टेट लेवल वर्कशॉप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में मुख्तलिफ शोबों की काबिल कदर तरक्की दर्ज हुई है और मुल्क तेज तर तरक्की की राह पर गामजन है। इस मौके पर पार्टी के दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान गिरधारी लाल रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली सरकार पर जम्मू को हर महाज पर नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार जम्मू के सैलाब मुतासरीन को भी राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्वच्छ भारत अभियान के शोबे ने आज शोबे के कन्वीनियर इंजीनियर दिल बहादुर सिंह की सरबराही में जम्मू के चंद इलाकों में सैलाब मुतासरीन में कंबल, मलबूसात और अशियाई खुर्दनी तकसीम किए। इस पहल में पार्टी को श्री गिरधारी लाल डोगरा ट्रस्ट का इश्तराक हासिल था, जिसकी नुमाइंदगी निधि शर्मा और मुनीश डोगरा ने की। सिंहपोरा पटन में आज जनता दल यूनाइटेड का एक रोजा वर्कर्स इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत जीएम शाहीन ने की। इजलास के दौरान तंजीमी अमूरात और जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। कांग्रेस के जिला सदर गांदरबल शेख एजाज अहमद ने एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि वो गुज़श्ता दिनों हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के तोहदे की जद में आकर जाँ बहक होने वाले अफराद के पसमानदगान के हक में खुसूसी नक़द रिलीफ पैकेज और मुस्तकिल इमदादी सहूलत का ऐलान करें, ताकि महलूकीन के मासूम बच्चों और लवाहकीन को सहारा मिल सके। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आकाशवाणी श्रीनगर, यकीन, एतमाद और आसान रसाई का दूसरा नाम। हमारे यहाँ से रोजाना खबरों के 11 बुलेटिन्स और तालीम, मालूमात, तफरी और मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम नश्र होते हैं, जिनमें आप इश्तिहार बुक करके अपने कारोबार को दे सकते हैं नई उड़ान के पंख। आकाशवाणी श्रीनगर, जहाँ हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में नाज़िम तालीम कश्मीर के दफ्तर में तैनात OSD गुलाम हसन ऋषि ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग्स एक संगीन मसला है जो नौजवान नस्ल की सेहत और मुस्तकबिल को खतरे में डाल देता है। इसके तदारक में वालिदैन और असातिज़ा दोनों का किरदार निहायत अहम है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ करीबी ताल्लुक कायम रखें, इनकी सरगर्मियों और दोस्तों पर नजर रखें और इन्हें मनशियात के नुकसानात से आगाह करें। दूसरी तरफ असातिज़ा को चाहिए कि वो स्कूलों में मनशियात से बचाव के बारे में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करें, तलबा की ज़हनी और इखलाकी तरबियत करें और किसी भी मुश्तबह रवैया को बरवक्त वालिदैन से शेयर करें। वालिदैन और असातिज़ा का बाहमी ताउन ही बच्चों को ड्रग्स के चंगुल से बचाने में मौसर साबित हो सकता है। मुनशियात के खिलाफ एक खुसूसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आज अवंतीपोरा में मिराजुद्दीन गराई नामी एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से नशीली अशिया बरामद की गई हैं। दरियासना हंदवाड़ा के अशपोरा क्रालगुंड इलाके में आज एक पुलिस पब्लिक दरबार का एहतमाम हुआ, जिसमें इलाके के लोगों को दरपेश रोजमर्रा के मसाइल का जायजा लिया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज छठे रोज भी गाड़ियों की नकल हमल के लिए बंद रही। ताजा बारिश की वजह से शहर के कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, ताहम शहर को आमदरफ्त के काबिल बनाने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। इधर
मुगल रोड और श्रीनगर करगिल रोड पर गाड़ियों की आमद रफ्त जारी है। इस बीच शुमाली रेलवे ने ऐलान किया है कि कल से 5 दिन के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन और संगलदान स्टेशन के दरमियान लोकल ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। इस ट्रेन सर्विस से उन मुसाफिरों को सहूलत होगी जो रियासी और रामबन में लगातार बारिश और अचानक सैलाब की वजह से दरमानदा होकर रह गए हैं। जम्मू उधमपुर सेक्शन पर रामनगर और मनवाल के दरमियान पस्सियां गिराने की वजह से रास्ता बंद होने के सबब आज तीसरे दिन भी जम्मू कटरा शटल ट्रेन सर्विस मुअत्तल रही। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को तफसीलात देते हुए बताया, जम्मू के खासकर जम्मू, रियासी, उधमपुर ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा मॉडरेट शावर्स, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं। और इसी तरह यहाँ वैली में भी आज पूरा क्लाउडी रहा मौसम, इंटरमिटेंटली लाइट रेन बारिशें हुई हैं। तो ओवरऑल 5-7 मिलीमीटर से ज्यादा हर जगह पे नहीं हुई है अक्रॉस वैली। बाकी जम्मू डिवीजन में खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास जो है थोड़ा मॉडरेट शावर फिर से चांसेस है। मॉडरेट टू हैवी 1-2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ सकते, जम्मू, रियासी और उधमपुर के अंदर। बाकी थोड़ा सा बारिशों के चांसेस हैं कल भी। और फिर 9 से मौसम जो है फिर से खुलने के चांसेस हैं और खुली धूप रहने के इम्कान हैं लगभग 12 तारीख शाम तक। फिर 12 देर रात और 13 मॉर्निंग के आसपास फिर से जम्मू डिवीजन के अंदर लाइट टू मॉडरेट शावर्स के चांस हैं। यहाँ वैली में भी चेक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर। और इसी तरह 13-14 के दरमियान में भी जो है फिर से हल्की बारिशों के चांस हैं जम्मू डिवीजन में देर रात और सुबह सवेरे। तो आगे आने वाले दिनों में भी मौसम थोड़ा सा सही बना रहेगा। लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग और उसमें थोड़े थंडर शावर एक्टिविटी जो है रहेंगी। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:09 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:47 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।